जहाँ पे आप ये स्टेटमेंट्स खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं और आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मिक कनेक्ट। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक दैट इज 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ अमेजिंग टेक्निक टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू डिज़ायर। लाइक इन चाइल्डहुड टीचर यूज टू टेल अस दैट लिख के पढ़ो, तब जाके हम लोगों को याद रहता था, राइट? तो दैट इज द थिंग, यू नो, राइटिंग triggers your subconscious mind and it really gives you the vibration to manifest. Now what are the things that you will require for this technique is you can write your wishes with blue pen, green pen, with red pen as well. So basically, if you want to manifest money, you can write it with green pen. If you want to manifest relationship, then you can write with red pen. And basically, if you want to manifest anything in your life, whether it is career, success, money, anything, you can write it with blue pen. I personally write all my wishes with blue pen. And diary is very important because you know you can miss out those pages if you are writing on the pages. And you know, if there is a diary, आप focused भी रहेंगे कि इस डायरी में वो मेरे सारे wishes है of 369 technique. ओके, सो दैट हेल्प्स। एक कोई भी आपकी डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप 369 टेक्निक करेंगे। सो बेसिकली आई कॉल माई डायरी अ मैनिफेस्टेशन डायरी। तो ऐसे कोई भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के लिए सिर्फ एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं दैट व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग दिस टेक्निक, बहुत बार मेरी विश जल्दी पूरी हो जाती है, वेदर इन 15 days or in 18 days only. So should I continue writing or skip it in between? So see, the important thing is that if you have decided to write for 21 days, then complete that cycle. Completing that cycle of writing is very important. 369 technique is invented by Nikola Tesla and basically is amazing to be in the vibration of 369. It is said that when you are doing 369 technique, many people see these angel numbers 369 या 639, and this technique is really amazing and is very simple. What we have to do is write down a wish 3 times in the morning, 6 times in the afternoon and 9 times in the night. Okay, तो बेसिकली बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, many of them ask me that whether we can just type the statement on iPad or computer. So basically जितना आप हाथ से लिखोगे उतना आपका subconscious mind trigger होगा. So it is very important to understand that writing really helps to trigger your subconscious mind. And what happens is 17 सेकेंड के लिए हम लोग उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं जहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट द थिंग्स वी रियली विश फॉर. नाउ यू कैन डू दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉर 21 days, 33 days or 45 days. Now many people ask me that I am completing this cycle of writing wishes 3 times in the morning, 6 times in the afternoon, 9 times in the night. There is a possibility that sometimes time miss हो जाता है. So try to follow the same time for manifestation. That will bring you good results. अभी क्या लिखना है? I'll give you some examples. Thank you universe, I'm grateful that I have 3 lakh rupees in my account now. Other example which we can say is thank you universe, I'm happy, blessed and grateful. So which kind of examples we can write related to money, relationship, career or any wish you have, any wish you want to manifest in your life. Now what should you not write? You should not write anything in negation, what you don't want. Okay, you have to not tell universe that I don't want this, I don't want that.
मुझे ये नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम्स, या मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। ओके, तो कुछ भी नेगेशन में नहीं लिखना है इन अ नेगेटिव लैंग्वेज, इन अ नेगेटिव थॉट और इन अ नेगेटिव फ्रेमवर्क। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर आउटलुक शुड बी पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव फ्रेमवर्क एंड इन अ पॉजिटिव एफर्मेशन की तरह आपको लिखना है। जैसे आपको कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे कि ऑलरेडी हो चुका है। वी आर गुड मूड टू स्टार्ट दिस मैनिफेस्टेशन, वी आर वेरी एनर्जाइज्ड फॉर 3 or 4 days। लेटर ऑन हम लोगों को वो एक टास्क जैसा लगने लगता है एंड लगता है अरे हैंड हर्ट हो रहा है, या उतना एनर्जाइज्ड वे में हम लोग ये चीज़ें नहीं करते, या फिर मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स दैट लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं या भूल जाते हैं। तब क्या करना है, तब ये प्रोसेस आपको फिर से शुरू करना है, क्योंकि आपने वो चीज़ उतने पावर से यूनिवर्स को आपने नहीं मांगा है। कोई भी चीज़ वेन एवर यू आस्क, okay, it is given, but it should be of that intensity। You have started this manifestation with a thought that होगा या नहीं होगा, देखते हैं, कर लेते हैं। So you are not serious while doing this manifestation, so your willpower should be strong, तब जाके वो चीज़ें आपकी manifest होने वाली है। Main important thing is your intention should be strong and clear for this manifestation। When your intention is strong and clear, you will complete those 45 days or 33 days। Next important thing to understand, whenever you are doing this manifestation, it is very important that you sit alone and do this process, especially in the morning। So basically ये manifestation करते समय कोई भी distraction ना रहे आपके आजू बाजू, जैसे टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, बच्चे चला रहे हैं। ट्राई टू बी अलोन एंड डू दिस प्रोसेस। आफ्टर राइटिंग, टेक आउट सम टाइम टू विजुअलाइज एंड feel that you are in the process of manifesting। With this technique, I had manifested money in my account, and write a specific amount if you want to manifest, and that time I used to visualize and feel कि ये money मेरे account में deposit हो गया है। उसके बाद मेरी feeling क्या है, उसके बाद ये news मैंने किन लोगों के साथ शेयर की है, उसके बाद मैंने ये मनी किसके लिए स्पेंड किया है, वेदर आई हैव परचेस्ड समथिंग ऑनलाइन, और या फिर मैं मॉल जाके मैंने कुछ परचेज कर लिया है, या मैंने डोनेट कर लिया है। तो बेसिकली विद दैट अमाउंट व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, या आप उस मनी से कार लेना चाहते हैं, वो डिटेल में आपको विजुअलाइजेशन है, डिटेल में वो स्टोरी आपको विजुअलाइज करना है, फील करना है, वो वाइब्रेशन फील करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ट्रस्ट एंड लेट गो ऑफ दिस प्रोसेस। बहुत सोचना नहीं है, डेस्परेट नहीं होना है, सरेंडर करना है कि हाँ ये चीज़ मैंने नहीं की है तो ये कभी ना कभी मैनिफेस्ट ज़रूर होने वाली है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। कोशिश की जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपकी स्टेटमेंट क्लियर और क्रिस्प हो, और आप वो विजुअलाइज करें, क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, क्लियर क्रिस्प इंटेंशंस बताते हैं और ट्रस्ट करते हैं प्रोसेस को कि वो ऑर्डर हमको ज़रूर मिलेगी। वैसे ही आपको सोचना है कि ये जो आपने ऑर्डर यूनिवर्स को दी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, तो ये ज़रूर आप कीजिए। मैं लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स इधर अटैच करूँगी वीडियो में, जहाँ पे आप ये स्टेटमेंट्स खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं और आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ग्रैटिट्यूड फॉर दिस।